I was very keenly listening to each of the speakers before me, Pallab Mahajan, Sanjeev Kumar, Paramjeet Rao, and also our compeer Rajni Sharma, because she also contributed in equal measure. At the outset, I think I have to congratulate Professor Manoj Dutt for the launch of this new biotechnology block. And it has more than one connotation for me, because when biotechnology had just started in IIIN, we were among the first to undertake a project over there. It came much later in the University of Jammu. And secondly, also because right now I happen to be looking after the Department of Biotechnology at the center, and therefore I propose to Professor Dutt, this being the 75th year of independence, could we identify 75 promising startups in biotechnology who could then be promoted by the Department of Biotechnology in the Union University of Science and Technology. And that has a lot of bearing in the subject that we are going to talk about this afternoon. When this proposal came to the American Council and I was asked what should be the subject, in fact it was I who said it would be youth contribution to India at 100. अब आप ये पूछेंगे कि why not at 75? सारा भी तो 75 के नाम से हो रहा है, because we are in the 75th year of independence. And you would also recall that from the ramparts of Red Fort, Prime Minister Narendra Modi in his independence has just referred to the 75th year and also mentioned Amrit Mahotsav. लेकिन क्यों मैंने ये सुझाया India at 100? Because 25 years hence, in 2047, India will be celebrating 100 years. So when India turns 100, many of us may not be around. I'm not saying for everybody, God bless them, but at least not actively involved in the service of the nation. So when the next 25 years are going to be the years which will determine the roadmap of India at 100. कि 100 वर्ष के भारत का क्या चित्र होगा, क्या तस्वीर होगी, क्या आकार होगा, उसका कल्पना चित्र बनाने का समय लेगा. And so we have a huge stake for this generation which is going to put in active years of service for the next 25 years. And that is why the subject this afternoon, youth contribution to India at 100. Now where do we come in? As I said, many of us may not be around at that time. Even if we are around, we may be in oblivion. I think this also gives a kind of satisfaction to my generation to be able to contribute, to facilitate their contribution in the making of India at 100. Because when you celebrate India at 100, 25 years from now, we may not be part of the celebration, but we, the members of my generation, are celebrating ourselves today by claiming to have contributed to facilitate your contribution, by mentoring you, by guiding you, by helping you, by assisting you. And that is what sums up the subject this afternoon. अब एक बात इन्होंने चलते चलते कही रजनी ने और फिर राहुल ने की योजनाएं हैं, लेकिन मालूम नहीं. So that is where we have to understand, because every generation has its share of contribution to make to the nation. My generation also had, the generation of the also had. और ये सिलसिला निरंतर चलता रहा. Every generation of youth
has an opportunity, but the contribution to be made by any given generation of youth is determined A, by the era in which that generation is born, B, the transition through which the nation is going through at that point in time, because we are constantly in transition. और जैसे मैंने कहा, ये केवल आपके हिस्से में नहीं आया, हमारे हिस्से में भी आया था, हमारे पूर्वजों के हिस्से में भी आया. Many of us made best of it, many of us could not. Now when we talk of independent India, you just go back to 1947. When India gained independence, the youth of that generation, youth of late 1940s and 50s, they had a huge challenge and an opportunity. Opportunity because suddenly they were out of the colonial shackles and then they could give vent to their aptitudes, their potentials. And challenge because it was the youth who had to vindicate the independence of India and to sustain, to make sure that independence is sustained. Because around that time, the prophets of doom had already started collapsing, counting the number of days India would last as a democracy. और Sir Winston Churchill ने ये कह दिया था कि India will not last for more than 50 years as democracy. Rather, it will go back to an era of barbarism. क्योंकि वो ना तो अपना आपको संभालना जानते हैं, ना अपनी व्यवस्था करना जानते हैं. And that was also the time when number of democracies around the world were actually collapsing. Communism was spreading all over. George Orwell ने लिखा, entire world would be painted red and it would start from India. He named that book 1984, but it didn't happen in 1984. उस माहौल में हमारे नौजवान की क्या मानसिकता रही होगी? अगर आप वो विजुअलाइज कर सके तो आपको लगेगा कि उसकी भी एक अपॉर्चुनिटी है. Then you can study, because the longer you go back, the further you look forward. अगर आप, because all of us are also researchers, if you could research what was given to him or her and how far could he or she deliver, then you would also be able to develop a vision of what is now available to us and how best to deliver it. And when we are talking of youth of that generation, on the one hand, as I said, the sustenance of independence, साथ ही साथ बंटवारा हो गया, the partition of Indian subcontinent, which I always say is possibly the greatest blunder and the greatest tragedy in the history of mankind, because nobody actually wanted it. It was the outcome of a handful of ambitious individuals, or an outcome of the ambition of a few. In fact, जिनके लिए पाकिस्तान बनाया गया, उस समुदाय के लोग भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे कि उन्हें पाकिस्तान चाहिए भी नहीं. It's not much talked after, not much often talked fact, but there was constituted a forum called Progressive Writers Forum, जिसमें कैफे आदमी थे, साहिब आदमी थे, Akbar Allahabadi, and they have vehemently opposed it actually. साहिब पाकिस्तान भी चले गए, साल के बाद वापस लौट आए, and out of disgust he wrote कि वो लोग गए, वो दौर गया जब दो कौमों का नारा था, वो लोग गए इस धरती से जिनका मकसद बंटवारा था. 10 लाख लोग मारे गए, उससे ज्यादा संख्या में लोग बेघर होके कैंप्स में रहे, कोई पंजाब में, कोई दिल्ली में, कोई यहाँ पे, क्योंकि and this entire liability and also responsibility again came from on the youth of this country. उनको अपने कॉलेजेस में एडजस्ट करना, उनके कैंपों में उनके खाने की व्यवस्था करनी, because the partition had been done very thoughtlessly and in a great haste, because Lord Mountbatten wanted to accomplish the entire process. उन्होंने लंदन लिखा, अक्सर ये बातें हम लोग आजकल अध्ययन कम करके ज़्यादा सोशल मीडिया पर रहते थे, इसे आती थी. उन्होंने लंदन चिट्ठी लिखी कि मुझे कोई एक्सपर्ट भेजिए, उन्होंने वहाँ से रेडियो भेजे, who was a renowned lawyer, Sir Redcliffe. He had never known India, he had never come to India, he just spent 40 days in Delhi और वहीं से लाइफ बना. और बाद में वो अगर दोस्ती ना होती तो हमारा
जम्मू कश्मीर का हिस्सा भी कट जाता, गुरदासपुर भी उतरी जाता, आधा पंजाब हो गया, आधा बंगाल हो गया। साथ ही साथ उससे पहले फेमिन आ गया 45 से 46 के दौरान, 15-20 लाख लोग मर गए बंगाल में। टैगोर was in his deathbed, sick bed, and he wrote a piece. He said, "I know independence is coming. My only regret is what bad administration is being left behind. Because this was mismanaged. War की वजह से बाहर से आ जाना बंद हो गया था और यहाँ पर ऑल्टरनेटिव बनाई गई। What I am trying to say is that that was a huge challenge that generation faced. फिर वो वक्त भी गया, then you have the next generation. But then they laid the foundation because उनकी आंखों में सपने थे, उनके दिल में उमंग थी, बाजुओं में जोश था। And just imagine under what hostile circumstances. Now we are talking of biotechnology, Professor Sudhar was talking of space. Under what hostile circumstances they would have lived up to that challenge, the youth of that generation. Sarabhai, for example, there was space hero. Satish Dhawan was actually son of son. He came from Jammu. Jammu वाले डोगरा करते थे, भूल जाते हैं जो डोगरा अचीवर्स जरूर दुनिया भर में नाम हुआ है। उस समय उन्होंने अंतरिक्ष पे चांद पर पहुंचने का सपना दिखाया, जबकि अपनी दादी माँ चंदा मामा दूर पे जाती थी और अमेरिका और रूस दिल्ली पर पहुंच गए थे around 1969 and they actually left. So you can understand what was the urge and compulsive desire to make the best of this opportunity in Mohammed. And I think that should be a great source of inspiration for the youth of this generation. Then of course 80s, 90s, recession and then this internet generation. So you had a different opportunity, you also had a different challenge. And then to cut the long story short, let's come straight to the present era, which I would say, in other words, the Modi era. And in 2014, Modi came like a breath of fresh air. And since I have learned to speak only about the subject that is assigned to me, because that is what we were taught as teachers also, I am talking in the context of youth. आप अनुमान लगाइए 2014 में क्या आया था? Youth of this country had lost hope. विदेश में रहने वाला हमारा युवा अपने आप को हिंदुस्तानी कहने में शर्म करता था। I came across many youth who would introduce themselves as Asians, not Indians. क्योंकि घुटालों का देश बन गया था, भ्रष्टाचार का देश बन गया। The country had almost lost track और लगता था कि भविष्य बहुत जल्दी होता है। And then arrived Modi in 2014. I had written a small piece. Now this is the beginning of a journey from pessimism to optimism. और इसलिए, and then a series of fast-track movement because Modi and his team, both Team India technologists, members of the ministry and government, had to make up for the lapses of last 70 years, which we have sought to do, not wholly, but at least to a larger extent in the last 7 years. आज आप कोई भी सेक्टर देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी राहुल बात कर रहे थे, we'll come to that in a few moments. From a state where we were actually importing grain, now we are in a position to export and also experiment with new crops. Digitalization, space की भी हम बात कर रहे थे, बायोटेक्नोलॉजी जो भी जिसका उद्घाटन हुआ ब्लॉक का, क्या ये is it a small achievement that the first DNA vaccine was developed by this department of biotechnology? There's a lab in Hyderabad. Actually, वो ठीक कह रही थी, हमें मालूम ही नहीं है इसलिए हमें we are in a state of ignorance, and ignorance जब लंबे समय तक चलती रहे तो it becomes a bliss. तो जैसे गालिब ने कहा कि हमें हस्ती से बेगाना होता, खुदारा में दीवाना होता, तो वो एक दीवानी बन जाती, उसी में मर जाएगी।
फरीदाबाद में छोटी सी लेबॉर्ट्री बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की, ट्रांसलेशनल हेल्थ लेबॉर्ट्री, वहाँ पे डेवलप किया। बाद में भारत बायोटेक ने उसको कमर्शियल तौर पर डेवलप किया। कहाँ से कहाँ आ गए स्पेस में? मैं कह रहा था, बिकॉज दिस इज फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूथ, दिस इज योर एसेट. You are living in one of the best times in the history of independence. स्पेस में मैंने बात की कि जब हम शुरू हुए तो चंदा मामा दूर के गा रहे थे. आज मंगलयान has completed nearly 6 years. It went up only for 3 years. It has crossed its own time limit. And the pictures sent by Mangalyaan are being procured by NASA, America. और उस दिन कह रहा था, शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसी तरह से एक आयोजन था लेक्चर का, कि अमेरिका was the first country to land a human being on the surface of the Neil Armstrong, 1969. Then he also went around and had a walk. BBC ने दिखाई उसकी न्यूज़, black and white हुआ करती थी. And then he made a famous dialogue: a small step for man, a giant step for mankind. मैंने राइटर वे में कह रहा था कि नील आर्मस्ट्रांग ने वहां घूम के देखा, लेकिन उसको पानी नजर नहीं आया. वो हमारा चंद्रयान गया और उसका चित्र लेके आया. And NASA immediately got excited and procured all those elements, because presence of water, H2O, in other words, would also imply that there is possibility of human habitat over there, possibility of the presence of oxygen. So under Modi, we have covered a very long journey and tried to make up for the loss of space that was hampering us in the last 20 years. It's just like हमें फास्ट ट्रैक एक्सप्रेस रोड पे चलने. And I think the best stakeholders and the best utilizers of that are those who have active next 20-25 years. कोविड अभी हाल ही में हुआ, it proved our capacity. आप अंदाजा लगाइए, maybe we didn't have PPE kits. Today we don't only have sufficient number of PPE kits, but we are also using reusable technology. हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, रेडिएशन टेक्नोलॉजी. We didn't have a vaccine. Today we have not only the first DNA vaccine of the world, but we are also exporting vaccine. तो कितनी कैपेसिटी है हमारे यूथ में, including the women scientists. Our entire team of Mangalyaan is actually dominated by women. और जो एग्री टेक्नोक्रेसी और एग्री स्टार्टअप्स की बात राहुल शर्मा ने की, I was the other day in Imphal. I was highly impressed and also pleasantly surprised. All the agricultural startups were women. And then also last week in Srinagar, almost 50 of us set up. और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि we'll have to change our mindset, particularly in this part of the country. मैं हर सप्ताह में 3-4 प्रदेश घूम के आता हूँ. दिल भारी भी होता है, ज्यादा बोलो तो नाराज हो जाते हैं. We have to shift from धरना to diligence. ये सरकारी नौकरी का जो कीड़ा पड़ गया, because 21st century, now let me just put it in a single sentence. 21st century India is offering us new opportunities, but with a rider, with new mindset. You cannot avail of the 21st century opportunities to the optimum extent if you approach them or address them with 20th century mindset. और अगर ये बच्चे भी नहीं कर पाएंगे, नौजवान भी नहीं कर पाएंगे, तो बूढ़ों ने तो जो करना था कर नहीं पाया. And when I say that you have to unlearn that mindset, what does that mean? ये जो नए एवेन्यूज खुले हैं, उसके लिए आपको अपने आप को ट्रेन करना है. ट्रेनिंग एंड स्किल, नॉट नेसेसरली डिग्री.
हुआ क्या है कि हम इस डिग्री के चक्कर में पड़ जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर दी, पीएचडी कर दी, फिर धरना लेके बैठ गए और आया वो बाइट लेने वाला, तो वो कहता है देखिए मैंने पीएचडी की नौकरी नहीं मिली, और उसको भी बड़ा मजा आता है कि पोर्टल आजकल गली गली घूम रहे हैं लेके। वो कहता है देखिए साहब कितना नौजवान के साथ नाइंसाफी हो गई, पीएचडी कर ली लेकिन सरकार ने नौकरी नहीं दी। भाई ठीक है, सरकार से पूछा था पीएचडी करने से पहले। विश्व की कोई भी सरकार हर नौजवान को सैलरी जॉब नहीं दे सकती, लेकिन हमने उसको लिंक कर दिया। हमने डिग्री भी ले ली, फिर डिग्री का निकला भी कुछ नहीं, और मीडिया वाले को मजा भी आता है, रोज आपका इंटरव्यू लेता है, और हमें भी मजा आता है अपना चेहरा देखने। और 4 years back I was sitting with the vice chancellor of Cambridge University. He's an elderly person, about 82, because वहाँ पे प्रोफेसर रिटायर नहीं होते, should be a good news. Professors और judges की रिटायरमेंट एज नहीं है, you can carry on as long as you are active and clever. So since he's a doctor, he was teacher of microbiology in a medical school. So whenever he's in Delhi, he found out he looks for me. तो मुझे कहने लगे, डॉक्टर I must compliment you. If we didn't have scholars from India, our PhD would be closed. हमारी सारी PhD करने वाले हिंदुस्तानी लड़के जो वो चले गए, तो मैंने दूसरे से डॉक्टर साहब बैठे, मैंने कहा ये क्या था, कॉम्प्लीमेंट था क्या, आपका क्या मतलब? मैंने कहा वहाँ अंग्रेज बच्चा तभी जाएगा पीएचडी करने जब उसने सोचा है कि इस पीएचडी को मैंने कहाँ कर ले जाना है, या तो मैंने सारी उम्र इसी रिसर्च में लगा दी है, शोध में, या इससे कुछ निकाल करके मैंने कुछ स्टार्टअप करना है। हमारे यहाँ जाता है वो कागज का शीट लेने के लिए, ट्रॉफी, फिर जगह जगह घूमता है, वापिस आके बायोटेक्नोलॉजी की पीएचडी करके वो कंप्यूटर की कंपनी का एमडी बनता है। देयर इज नो कोरिलेशन, एंड आई नो ऑफ number of them, I don't want to name them, some of them very eminent persons, Professor Manoj Thar would be named. हमारे बायोटेक्नोलॉजी वाले भी हैं ऐसे, बायोटेक्नोलॉजी करके आए और एमडी बन के आईटी में, क्योंकि हमारे यहाँ हमने डिग्री को लिंक कर दिया और सोचा कि अब डिग्री आ गई है तो अब नौकरी देने को घर आ जाएगा। सो हमें पहले तो वो माइंडसेट छोड़ना, ट्रेनिंग एंड स्किल नॉट इन कोरिलेशन। दूसरा कैपेसिटी बिल्डिंग, और सुनने में बड़ा अच्छा लगता है जब हर जगह कोई भी डिस्कशन होती है, बोलते हैं कैपेसिटी, तो व्हाट इज कैपेसिटी बिल्डिंग? कैपेसिटी बिल्डिंग इज योर एनहांसमेंट नॉट थ्रू लेक्चर लर्निंग और इन क्लासरूम, इट्स अ म्यूचुअल टू वे ट्रैवल। जैसे मैं इन बच्चों से पूछता हूँ, यार ये कैसे किया, ये कैसे किया, इस वीडियो को ऐसे कैसे किया, आई एम कॉन्फिडेंटली लर्निंग एंड आई कम हियर आल्सो टू लर्न, एंड आई एम श्योर व्हेन आई गो बैक फ्रॉम हियर आफ्टर हाफ एन आवर सो आई वुड हैव लर्न मोर फ्रॉम यू देन यू वुड हैव लर्न फ्रॉम मी, क्योंकि ऐसी जिज्ञासा हमारे मन को कुरेदती रहती है। Right, that's why I always try to learn from the youngsters. वे कोई नई चीज सिखाओ, हमें निराशा होती है कि कुछ सिखाया है। That is capacity building. And third is that you have to come out of silos, integrated approach. जब तक नहीं होगी आपका स्टार्टअप कामयाब नहीं होगा। और इसके लिए even the parents have to be educated. I was addressing we started a new program, the first of its kind. मैंने शुरू किया मेंटरशिप प्रोग्राम, किसी ने नाम नहीं सुना था हिंदुस्तान में, मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर यंगस्टर्स, पर्टिकुलरली एरिया साइंस फॉर एंड देन वी यूज्ड टू द नेचर। तो मुझे पूछा गया कि इसका क्या, इसका मोटिव क्या है? मोटिव यह है कि पेरेंट्स नहीं अपने बच्चों को खराब करती है, इसलिए हमें ऐसे मेंटर चाहिए जो खुद शोध करके उनको गाइड कर सके, क्योंकि बच्चा जब 10वीं जमात से निकलता है तो उसको वो दिखा देते हैं, वो कोचिंग सेंटर, वो कोचिंग सेंटर, वो कोचिंग सेंटर, वो उसी में घूमता रहता है। सो इफ यू हैव अ मेंटर, मेंटर इज मेंट टू आइडेंटिफाई द एक्चुअल एप्टीट्यूड एंड पोटेंशियल ऑफ द यंगस्टर एंड देन आल्सो प्रमोट एंड कल्टिवेट इन नर्सरी। We already started that in about 250 colleges across the country. Very soon we can have it here also. We call them star colleges. And therefore I said, equally important is the education of the parents, who, though in good faith, not that अपने बच्चों का सब भला सोचते हैं, but they think what is right is not absolutely right in the current situation, because their mindset is also 20th century. और कुछ लोग तो कहते हैं कुछ तो मोहब्बत
मोहब्बत में जुनून रंग दिखाता है, कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं, कुछ हमारी बिरादरी के लोग आपको खराब कर देते हैं राजनीति की बिरादरी। जहाँ 4 आदमियों का खाना बैठा हुआ फोटो खिंचवा लिया, कहा साहब मुझे वोट दीजिए, मैं 2 लाख नौकरियां दे दूंगा, कोई नहीं देने वाला। आई वॉज सेइंग दिस इन लखनऊ ऑल्सो, जहाँ इलेक्शन लड़ रही है, मैं कहा हर पार्टी आएगी, हर नेता कहेगा हमें जो चाहिए 2 लाख नौकरी देंगे, लेकिन नहीं होगा वो। टुडे वी हैव टू कन्फ्रंट आवर यूथ विद एविडेंस फैक्ट एंड यूथ इज रेडी टू एक्सेप्ट इट। और फिर उसके अलावा क्योंकि हमारी अपनी समझ कम होती है, तो हम बच्चों को व्यवस्था में इंडस्ट्री आ जाएगी तो सब बेरोजगार है। आज तक इतिहास में कहीं ऐसा कोई मिसाल नहीं कि जहां नई इंडस्ट्री लगी हो तो बेरोजगारी हुई, बल्कि रोजगार बढ़ा है। सो यू हैव टू हैव एस्पिरेशन विद इनोवेशन एंड विद कॉम्पिटिटिवनेस। सो इफ यू सम अप व्हाट आई हैव सेड इन लास्ट 5 or 10 minutes, you have to avail of the 20th, if you want to avail of the 21st century opportunities to the maximum extent, which only you can do. Because मैं चाहता हूँ करूँ, लेकिन अब I cannot go back and become 30 years old. मुझे ये अपॉर्चुनिटी देख के होता तो मैं कई बार वो कहता है कि दिल जवान रहने दिया, जिस्म पूरा कर दिया। I wish I could turn 30. इतने खूबसूरत एवेन्यूज निकल करके आए हैं। So the 21st century is offering opportunities, but with the rider that you have to have a reoriented mindset. You have to come out of the 20th century mindset and aspiration with innovation. अभी एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहे थे, उसमें छोटी सी मिसाल दे दें बस। I think I have to also wind up. यहाँ पर हमारे यहाँ एक लड़का है, मैंने उसका काफी प्रचार किया, वेबिनार भी कराया, IIIM में उसका प्रोग्राम भी कराया। भारत दूत उसका नाम है, उसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना के ले रहा हूँ। He belongs to a small place called खिलैनी in डोडा। हमने अरोमा मिशन शुरू किया, ये पर्पल रेवोल्यूशन अभी राहुल ने बताया, हमारे डिपार्टमेंट। और उसका जन्म कहाँ हुआ? जिस स्थान पर हम बैठे हैं यहाँ से 6 किलोमीटर IIIM, जिसको आप रीजनल रिसर्च हुआ, लेकिन यहां भी नहीं किसी को पता। ये लड़का उठ करके वहां से आया, गेम में ऑन द स्पॉट उसके पास सिर्फ 1 हेक्टर जगह है, जिसको आप लोकल कनाल में बोलते हैं, जगहों में 6, 7, 8 कनाल। लाखों रुपया 6 महीने में कमाया है। और उसको देख करके 2 बायोटेक किए हुए लड़के जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते थे, वो डॉक्टरी छोड़ता है। मैं उनसे भी मिला, तो जैसे आई ट्राई टू लर्न मोर देन यू वुड लर्न फ्रॉम मी। तो कह लगे साहब हमने देखा ये अधपना आदमी ने कैसे कमाया, हम सुबह 8 बजे से रात तक 9 बजे तक कंपनी नौकरी कर रहे हैं एंड टेक्निकल नो हाउ उनके पास थी। बोले साहब हमने तो 4 महीने के अंदर अपनी इनकम भी डबल कर ली। मैंने कहा मोदी जी ने तो कहा था डबलिंग फार्मिंग बाय 2022, आपने 21 नहीं कर दी। इतने सारे एवेन्यूज हम नए खोल चुके हैं, which are entirely based on innovation, creativity and the technology that we have. And these startup avenues are much, much more lucrative than a government job. और इसलिए I think we have a small interaction because I would like to rather understand from them. Focus is important. अब लीडर ने कह दिया मैं तुम्हें नौकरी नहीं दिला सकता, हमने इतना फूल प्रूफ कर दिया, मोदी जी ने इंटरव्यू भी खत्म कर दिया, अपने बेटे को नहीं दिला सकता। वो पुराना जमाना चला गया, 4 पैसे लेकर के कहीं पैर लगा। एंड वी हैव ट्राइड टू चेंज द पॉलिटिकल कल्चर, जहां जिस चीज की जरूरत है। हिंदुस्तान में सबसे पहली सिट्रस फूड पार्क बनानी थी, स्पेशलाइज्ड फूड पार्क। इजराइल की कोलैबोरेशन से मैंने इजराइल के एम्बेसडर को पूछा, वो करके सबसे ज्यादा सूटेबल जगह हमारे पास मिजोरम है, बिकॉज दे हैव रिसोर्सेज, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया। उसे कोई पॉलिटिकल डिविडेंड नहीं मिलेगा। 10 लाख आबादी है उस राज्य की, सरकार किसी और पार्टी की, कभी हमारी पार्टी का ना कभी विधायक बना ना कभी सांसद, ठीक एंट्री आता है दिल्ली, ना वो सरकार बना सकता है ना बिगाड़ सकता है। लेकिन जहां जरूरत थी, जहां उसका औचित्य था, जस्टिफिकेशन वहां करके दिया। एंड दैट इज गोइंग टू बी द न्यू कल्चर, एंड दैट इज व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू लिव अप टू, and because you are going to be stakeholders and also the beneficiaries. And therefore, to end, I would just say that
जैसे मैंने कहा कि आज़ादी की पीढ़ी के आगे ये चैलेंज था हाउ टू सस्टेन फ्रीडम. योर चैलेंज वुड बी that when tomorrow Dr. B itself actually India has become a frontline nation in the Community Awards, how best to sustain this supremacy of India, which is going to happen in the next 10 to 25 years. And as I said in the beginning, I end up saying that you have this privilege, which we don't enjoy. जैसे हम आज आपको लेक्चर दे रहे हैं, प्रोफेसर दान ने दिया दूसरे. When you are our age, you will have the privilege, not we, to tell your students, your children, look here. When India turned 100, I also contributed in the making of it. And I can also be hailed as one of the architects of India 100. Thank you. बहुत शुक्रिया सर. और देखिए, जैसे सर ने बहुत हर एक चीज को बहुत बारीकी से बताया. 100 वर्षों में भारत का क्या चित्र होगा, क्या आधार होगा, और 100 वर्षों में हम क्या कर पाएंगे. अरे सरकारी नौकरी में ये नहीं कह रहे कि मैं किसी को ये नहीं कह रही कि मत करिए, है तो करिए, लेकिन अगर आपको ज्यादा फायदा हो सकता है, आप बेरोजगारी को खत्म कर सकते हैं, सिर्फ अपने तक नहीं बल्कि और लोगों को बहुत सारा रोजगार मुहैया करवा सकते हैं, तो फिर ये कीड़ा क्यों कि मुझे सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए. आपको पता है सरकारी नौकरी में क्या होता है, हम एक बंदी से बन जाते हैं. अगर हम बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी है ना, तो अपनी बात कभी नहीं कह पाएंगे. लेकिन अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, अपनी मर्जी का बिजनेस करते हैं, तो इससे क्या है कि आपकी अगर प्रतिभा है तो वो प्रतिभा छुपी नहीं रहेगी. और माननीय प्रधानमंत्री साहब ने बहुत सारा हमें दिशा निर्देश दिया है कि किस तरह से लोकल्स होता है. कई बार हम अच्छी भाषा का प्रयोग नहीं कर पाते. मैं ये अच्छी भाषा इसलिए कह रही हूँ, कुछ ऐसे लोकल्स हैं जिन्हें जो टेक्निकली बहुत साउंड होते हैं लेकिन अंग्रेजी भाषा नहीं आती, उस कारण वो लोग पीछे रह जाते हैं. लेकिन अब माननीय प्रधानमंत्री ने एक बहुत अच्छी राह हमें दिखाई है, बहुत अच्छा रास्ता दिखाया है कि अगर आप में टैलेंट है तो अपनी भाषा में कर दिखाइए. और फिर देखिए भारत किस तरह तरक्की की राह पर चलता है. सर ने बहुत बारीकी से बताया. सर के लिए बहुत सारी तालियां, दिल से तालियां आनी चाहिए. बहुत शुक्रिया. चलिए अब ज्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि सर की बहुत सारी मीटिंग्स हैं. कुछ स्कॉलर्स इंटरेक्शन करना चाहते हैं, उनसे गुजारिश है कि संक्षिप्त में प्रश्न करिएगा और जवाब बहुत अच्छा मिलने वाला है. आप माइक दे दीजिएगा प्लीज. प्रश्न अगर आप करना चाहते हैं संक्षिप्त करिएगा. Good afternoon, everyone. So my question is, so what are the areas in the field of science and technology that you feel most important in the coming years in India? Sir would want that you introduce yourself first. तो आप अपना नाम और डिपार्टमेंट का बता दीजिए और उसके बाद सर का जवाब. My name is Sanjeev Kumar and I am from the Department of the Business School, University of Jammu. And my question is, what are the areas in the field of science and technology that you feel the most important in the coming years in India? Actually, I think I appreciate your question. वही मैंने कहा, जो ये भी कह रहे थे कि हमें जानकारी का अभाव है. There is no area today which is not left touched by science and technology and innovation. और apparently जो non-scientific areas हैं, they are also having scientific basis. आपका हेल्थ है तो टेलीमेडिसिन है, आपका एग्रीकल्चर तो आज अच्छी एग्रीकल्चर आज का किसान हो, पिछला किसान नहीं रहा 2 बीघा जमीन वाला. इज एन एग्रीकल्चर टेक्नोक्रेट, जैसे वो राहुल ने बताया भारत में. दे आर एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स. वो कंप्यूटर में बैठ के सॉइल हेल्थ कार्ड देखता है, उसके पास एनालिसिस आ जाता है विच क्रॉप टू सो. वर्चुअली एवरी एरिया. बट साइंस में इनोवेशन की भी इतनी गुंजाइश है that if you innovate, then you become different from others. So that is why I said aspiration, innovation and competitiveness. तो साइंस के अंदर भी इनोवेशन इतनी ज़्यादा. बायोटेक्नोलॉजी की इन्होंने बात की प्रोफेसर धर ने. पहले बायोटेक्नोलॉजी was limited only to research. Now it's also become a means of startups. मैं इनको बता रहा था कि अभी दिल्ली स्कूल्स का एक सर्वे हुआ to understand the aptitude of the children at class 12 level.
एंड आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज। वो इंजीनियरिंग मेडिकल तो आया ही आया, लेकिन पहले 5-6 में बायोटेक्नोलॉजी आ गया। बिकॉज entire treatment not only of the human beings but also of the plant genomics, कैसे हाइब्रिड बदलेंगे। आज हम मणिपुर में आम उगा रहे हैं, मैंने उसको कहा संतरा भी उगा दो, नागपुर जाके खिलाएंगे जिनको संतरे का बड़ा फकर। सो वी अच्छा, ट्यूलिप का गार्डन यहाँ पे आपके यहाँ लगा श्रीनगर में, तो मैंने जाके पूछा कि कहाँ है, तो आई वॉज टोल्ड कि उसका बीज हॉलैंड से लाते हैं, जहाँ अमिताभ बच्चन ने गाना गाया था सिलसिला का। Since I keep roaming and as I said, वो जिज्ञासा सताती रहती है। I discovered that the same bulbs could be cultivated in Ladakh. So I spoke to the Lieutenant Governor. अगले साल तक हम यहीं से लाएंगे, हॉलैंड की जाए। तो ये है इनोवेशन। हमारे बीच में इतने रिसोर्सेज, बिकॉज इंडिया इज a huge resource pool. बाकी देशों में नहीं है, because they are homogeneous as a society, homogeneous geographically, homogeneous even in their biostructure. We have biodiversity. तो हमारे पास इतना कुछ है। एंड बाकी तो जो आप कह रहे हैं कि साइंस टेक्नोलॉजी का क्या है, तो आई थिंक जैसे स्पेस की बात की प्रोफेसर धर ने, स्पेस टेक्नोलॉजी हैज वर्चुअली एंटर्ड एवरी इंडियन हाउस होल्ड। और इसका एक मेरिट ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन लिटरेसी है, इट इज नॉट एब्सोल्युटली कोरिलेटेबल विद योर लिटरेट लिटरेसी, कि आपने कितनी पढ़ाई की है, बीएससी कर ली, एमएससी, उसकी जरूरत नहीं है। अब जाइए गांव में, कोई बड़े से बड़ा अनपढ़ व्यक्ति मिलेगा, हो सकता है मुझे व्हाट्सएप में वीडियो भेजना ना आता हो, मैं उसको पूछूं, वो करके दिखाएगा। सो ही इज मोर लिटरेट एज फार एज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड इज कंसर्न। तो ये भी एक नया है जी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये जो डाइकॉटमी है, ये जो हमने बांध के रख दिया अपने आप को डिग्रियों के दायरे में, और फिर बिकॉज दिस इज अ कॉलोनियल माइंडसेट जो हमारी पिछली सदी का है, बिकॉज ब्रिटिशर्स वांटेड अस टू बी लाइक दैट, दे वांटेड अस टू बी देयर सर्वेंट्स। द फर्स्ट जब लेक्चर हुआ सरदार पटेल ने दिया 1948 में अप्रैल में, पहला सिविल सर्विसेज डे, तो उन्होंने कहा कि अब जो सिविल सर्वेंट होगा, he should think that he is servant of the common people, क्योंकि पहले वो एम्पायर का था। एंड मैं अभी परसों लखनऊ में कह रहा था, मैंने कहा आप वहाँ लगाइए, जो हमारे यहाँ इंडियन सिविल सर्विसेज करके प्रोबेशनर निकलते थे, वो प्रोबेशनरी करने के लिए यूके जाते थे। आज हमारे पास हमारे ही विभाग में डीओपीटी में इंग्लैंड से बच्चे आते हैं। वो इसलिए आते हैं कि यहाँ पर इवन इतनी हिट्रोजेनिसिटी और डाइवर्सिटी है, इवन इन द एरिया ऑफ गवर्नेंस, सो को यहाँ सीखने को मिलता है, वहाँ नहीं मिलता। So we have abundant opportunity, particularly with somebody like Modi at the helm of affairs, who is giving, अब हमारा बजट देखिए कितना बढ़ गया, हेल्थ का बढ़ गया, स्पेस का बढ़ गया। पहले हमारे पास, आप स्पेस के लिए भी टेक्नोलॉजी में आप यू कैन स्टेप इन एज स्टार्टअप्स, हमने उसको प्राइवेट के लिए खोल दिया। पहले स्पेस बंदिश रहती थी। When I first time went to Sriharikota as a minister, तो डॉक्टर राधाकृष्णन जिसको हमने डॉक्टर एम के साथ जोड़ दिया है, तो ही टुक मी वाज अ फ्रेंड ऑल्सो। बोले ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ कोई नहीं जा सकता, इवन साइंटिस्ट, जहाँ से व्हीकल लॉन्च होनी है। तो जहाँ जब हम गए रात के 12 बजे, तो मैंने कहा राधा, आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू लर्न वन न्यू थिंग एवरी डे। आज तूने एक सिखाई। मैं कहता है क्या? मैं कहा ईदर वन हैज टू बी एज एमिनेंट एज साइंटिस्ट एज यू, और कहीं हुक और कोई मिनिस्टर बन जाओ। तो यहाँ तक पहुँच सकते हो। फिर देन दैट डे इटसेल्फ आई पुट फॉरवर्ड दिस, व्हाई कीप इट फॉरबिडन? आजकल तो गूगल से सब दिख रहा है। We have unlocked this space. You can become startups in space technology. हमारा जम्मू का एक छोटा बच्चा है, he's just about 14 years old. We discovered him, सरदार जी. He has started producing nano satellites. उसको हम सपोर्ट दे रहे हैं. We sent him to Bangalore. इतना कुछ हमारे पास है। इसी तरह एटॉमिक एनर्जी में हमारे पास फंड्स की कमी थी, मोदी जी ने उसको भी जॉइंट वेंचर्स के लिए अलाउ कर दिया। You can become partner for the time of the. So what I'm trying to say is, to agree with what Rajni ji was saying in his remarks, हमारे पास बहुत कुछ है, हमें उसको थोड़ा सा, तभी मैं कह रहा हूँ कि अगर हमें पूरी जानकारी नहीं, तो हमारे कुछ ऐसे मेंटर्स हों जो हमें गाइड कर सके। जी अगला प्रश्न। सभी को नमस्ते। रवेल परिहार, रिसर्च स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन।
सर, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इट इज़ द मैग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर द फ्यूचर। तो इसमें एक बजट को लेके 6% बजट जो है वो इसमें इन्वेस्टमेंट होगा, तो क्या इसके लिए केंद्र सरकार 6% बजट को लेकर इस पर क्या रणनीति होगी सर? नहीं, बहुत बढ़िया। इनफैक्ट दिस इज, अब क्योंकि मैंने सोचा कि हमारा वक्तव्य लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने वो बात नहीं की। दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज ऑल्सो इन कीपिंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द 21st सेंचुरी अपॉर्चुनिटीज। और अगर 21st सेंचुरी अपॉर्चुनिटीज के अवेल करना है तो आपको 20th सेंचुरी का माइंडसेट छोड़ना हो सकता है कि पुराने जो हमारे मापदंड थे वो आज काम नहीं आएंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की सबसे बड़ी बात यह है, आई थिंक दिस शुड हैव हैपेंड मेनी इयर्स अर्लियर, अगेन थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। इसमें एग्जिट एंट्री है, और मुझे लग रहा है कि एक पीढ़ी गुजर जाने के बाद जो मैं बात आज इतनी शिद्दत से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने आप को डिग्री से डीलिंक कर दो, वो आपको खुद समझ आएगी। इस पीढ़ी को नहीं अभी। इसमें क्या है कि आप 2 साल कॉलेज के बाद आपको लगता है कि साहब मैंने तो लिया था कॉमर्स, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा, आप चले जाइए, घूम फिर के आइए दूसरी जगह, एक्सप्लोर योरसेल्फ, एक्सपेरिमेंट योरसेल्फ, एंड देन यू सडनली रियलाइज नो, आई वाज मेंट फॉर बायोटेक्नोलॉजी, आई वाज मेंट फॉर फिजिक्स। यू कम बैक, यू रिज्यूम योरसेल्फ विद फिजिक्स। हमने ये नहीं है कि एक बार छोड़ दिया तो हो गया जी, वो क्या है ड्रॉपर, वो भी एक संज्ञा चल गई, ड्रॉपर, 10th ड्रॉपर, फर्स्ट ईयर ड्रॉपर, वो खत्म हो जाएगा और फिर समझ आएगा कि दिस इज द राइट कोर्स। दूसरा, उसमें स्किल पे और वोकेशनल पे बहुत ज्यादा बल है। और तीसरा, उसको मैं बना रहा हूँ उसकी, वी आर ऑन द जॉब, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक बनाएंगे जो आपकी यूनिवर्सिटीज में पैसा आ रहा है साइंस इनोवेशन के लिए। जैसे अभी पहले संजीव जी ने पूछा, वो कह रहा है कि जो ग्रांट्स हैं आपके पास, 10% ग्रांट सिर्फ उन इंस्टीट्यूट्स को जाती है जो सही मायने में काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा। जैसे मैंने भी कहा कि इंडियन लाइफ साइंसेज भुवनेश्वर ने बड़ा गजब का काम किया। मैं प्रोफेसर धर को बोल रहा था, बिकॉज ही इज ऑल्सो फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी, सो आई हैव ऑल्सो बीन डीलिंग विद दिस डिपार्टमेंट एंड वर्किंग विद दिस इवन एज ए रिसर्चर। आई सेड दे कंप्लीटेड 1 lakh जीनोम स्टडीज। तो अभी मैं इनसे यही बात कर रहा था, लेकिन उनको फंड कम मिलता है, ज्यादा फंड मिलता है यूनिवर्सिटी को जहां रिसर्च कम होती है या इस तरह की इनोवेशन कम होती है। तो हमने ये सोचा है कि इसको हम पूल करेंगे सो दैट जो फंडिंग जाएगी इट विल बी ए कॉमन पूल हेडेड बाय सम फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्रेसिव एडवाइजरी कमेटी या कुछ ऐसी बनाएंगे ताकि वो। और दूसरा, इंटेग्रेशन, जैसे मैंने कहा 5 किलोमीटर दूर है हमारा III, हमारा उसके साथ लेना देना ही कुछ नहीं। हम क्यों ना यहाँ पर हर साल इतना ही कर दें, एक थीसिस दे दें, गाइड हमारे यहाँ से, क्योंकि मेन गाइड तो पेरेंट डिपार्टमेंट का है ना, को गाइड वहां से बने। प्रोफेसर को मैंने पिछली बार कहा था, कहने लगे इस साल कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज 2 किलोमीटर दूर है, मैं वहां गया और मैंने वहां बैठ करके वहां प्रिंसिपल को बुलाया, मैं कहा आप आइए, और मैंने कहा फार्माकोलॉजी का इतना काम हो रहा है यहाँ पे, उसका थी। तो हम जब इंटेग्रेट होंगे तब हमें पता चलेगा। जो हमें कम है जानकारी, वो इसलिए भी है कि हम दूसरे के दरवाजे में झांक ही नहीं रहे। So the era of silos is over. Any institution, be it university or be it department, cannot function in isolation. मैं तो मीटिंग भी लेता हूँ अकेले डिपार्टमेंट की लेता, बिकॉज आई हैव 8 डिपार्टमेंट्स। मैं 8 के 8 इकट्ठे बैठाता हूँ। शुरू में अखबारें में लिखती थी क्या हो रहा है, बट उससे क्या हुआ, उनको एक दूसरे का पता चला और मुझे पता चला कि वहाँ का क्या काम वहाँ इस्तेमाल हो सकता है। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट, अभी डॉक्टर रेड्डी है जैसे हमारे डायरेक्टर, एक दिन उनका एक यहाँ पर प्रेजेंटेशन रखवाइए, जो ये राहुल ने कहा या जो रोमा का किसी पर्पल रेवोल्यूशन का कहा, ये सारा वो बताएं। हमारे में वो चीज कम हो रही है। वी आर स्टिल, हमारा जो करिकुलम है वो भी 20th सेंचुरी का है, उसको भी बदलना है। मैंने जाकर के मसूरी का करिकुलम सारा बदला, जो हमारी गजाई लुक आफ्टर दैट अकेडमी आई, वहां पर ज्यादातर फैकल्टी हमारी विजिटिंग थी ह्यूमैनिटीज। तो वो जमाना था जब वी वर ट्राइंग टू स्ट्रेंथन आवरसेल्व्स आइडियोलॉजिकली, और मैंने कहा इसमें साइंस फैकल्टी डालो, इसमें वुमेन फैकल्टी लाए, बिकॉज अब जेंडर की बात भी होती है। तो हमें वो भी बदलना होगा, अपना करिकुलम भी बदलना होगा। एंड करिकुलम इज समथिंग विच इज डायनामिक। हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है एक बार सिलेबस बन गया 20 साल के बाद बदलता है। इट हैज टू चेंज एवरी ईयर एक्चुअली। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में चीजें आएंगी। सो आई एम ग्लैड दैट यू रेज दिस इशू। थैंक यू सो मच सर।
Good afternoon, sir. Sir, since you also had DOPT, there are various discussions in various think tanks and general public about the inefficiency of direct activism. Very unfortunately, this year we have been seeing civil servants behaving like, I must not say that, but they are really behaving like hegemons, completely disregarding constitutionalism. Various reforms like your government has initiated various reforms like Karam Yogi. Sir, since you are at the helm of affairs there, I want to ask you if the institution of IAS is becoming obsolete nowadays, and what type of officers you are looking to help India when India reaches 100. देखिए, we see it in the larger perspective जो हम अभी बात कर रहे थे. We have to actually reorient ourselves. हाँ जी बोलो. Not only you, even me. Not only youth generation, the elder generation. Youth को मैं बार-बार क्यों कहता हूँ, मुझे लगता है कि उनके पास एक एडवांटेज है, उनके पास एनर्जी, अगले 25-30 साल दौड़ धूप कर सकते हैं, शायद मैं ना कर सकता हूँ. तो I start and others start visualizing ourselves in you. लेकिन even in IAS, as I said, मसूरी का करिकुलम इसलिए हमने बदलने की कोशिश की है क्योंकि हम नहीं रीओरिएंट हो पा रहे, व्यवस्थाएं रीओरिएंट है, हमारे इर्द-गिर्द का जो वातावरण है वो रीओरिएंट हो रहा है. I'll just give you a small example. I was saying this to अरुण जेटली जी 3 साल पहले, because मैं रोज कोई ना कोई खुराफाती लेके उनके पास जाता था. He got quite interested. The entire demography of IAS has changed. At the level of region, at the level of gender, and also at the level of their background. वो कैसे? उसका रीजन है. और उसमें भी उसी से हमें इसका भी हल ढूंढना होगा जो आप कह रहे हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक जमाना था कि IAS ऑफिसर जितने भी आते थे ज्यादातर आते थे तमिलनाडु, केरला, बिहार से. अब टॉपर आ रहे हैं कहाँ से? पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, जहां कभी IAS की लिस्ट में कोई नहीं होता, कश्मीर से भी. बिकॉज, और दूसरी बात कि पहले आते थे पब्लिक स्कूल के लड़के, बड़े. अब कौन आ रहा है? नवोदय विद्यालय. वो इसलिए कि उन्होंने इसका इस्तेमाल करना सीख लिया. मैंने कहा ना, एस्पिरेशन, इनोवेशन, कॉम्पिटिटर. जिस बच्चे को ये समझ आ गया कि इसके अंदर सारा समझ, क्योंकि जब हम भी थीसिस करते थे, आई थिंक मस्ट बी एप्लीकेबल टू देम आल्सो, तो हमें हमारे गाइड कहते थे साहब इसकी ये किताब है लेकिन ये किताब मिलेगी ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी. और ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी कौन सी? दिल्ली वाली नहीं, मद्रास वाली. तो कौन जाए कहाँ से जाए? अब सब कुछ यहाँ है. सो दी डेमोग्राफी, रीजन भी बदल गया. नो, मेरे पास एक चौथा टॉपर, बिकॉज फॉर द लास्ट 7 years आई एम सिटिंग विद द फर्स्ट 20 टॉपर्स ऑफ IAS, नॉट फॉर देयर गुड, टू लर्न माई सेल्फ. आई स्पेंड क्वाइट सम टाइम विद. 4th टॉपर आया आज से 4 साल पहले. गुंटूर एक जिला है आंध्रा का, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट. BA तक उसने तेलुगु में की. तो मैंने उसको पूछा क्यों ऐसा किया, तो बोला कि मेरे घर के पास कोई डिग्री कॉलेज नहीं था, जो नियरेस्ट था मैं पैदल जाता था, वो तेलुगु मीडियम ही था. लेकिन मैंने ठान ली थी, तो मैंने कहा फोकस विद इनोवेशन. तो उसने इनोवेशन ये थी कि वो पैदल करके जाता था. उसने कहा चलिए मैं डिग्री BA क्वालिफिकेशन में कर लूँ, बाद में आई मैनेज. तो उसने तेलुगु में BA करके 4th टॉपर आ गया. इसी तरह से एक IIT की लड़की यहाँ सुपर 50 शुरू किया है, 35 कश्मीर में. छोटी सी बच्ची 12th क्लास, अनंतनाग. उन सबके साथ बैठता हूँ क्योंकि ऐसा हुआ क्या कि टीचर थिंक्स दैट ही इज नाउ ओनली टू टीच, नॉट टू लर्न. तो फ्रांसिस बेकन ने एक बार लिखा था, सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, द ग्रेटेस्ट हार्म टू द कॉज ऑफ लिटरेचर इज डन बाय द टीचर्स ऑफ लिटरेचर. तो उस बच्ची ने को मैंने पूछा कि बेटे तू वहाँ सोपुर में इतनी आता और वो कभी आई नहीं. तो मैं दिल्ली लाया, पार्लियामेंट घुमाया, उसके पेरेंट्स भी आए. तो कभी बाहर नहीं निकली, ये नहीं किया. तो कहा, कहती है कब ये सारा कुछ इसके ऊपर है और IIT उसे क्या करे. बाकी कहती है कुछ मुश्किल नहीं है, 6 महीने 14 घंटे फोकस होकर पढ़ाई करनी है. मेरे को मुझे पहले पता होता था मैं भी करता, मुझे मिला नहीं पैसा समझने. तो ये डेमोग्राफी बदली. दूसरा, पहले 10% सिर्फ लड़कियां होती थी सिर्फ. आज हमारे पास 40%. इस बैच में 39%. फर्स्ट 20 टॉपर में 50% आर गर्ल्स एंड 50% वुमेन. फर्स्ट 3 टॉपर्स में फर्स्ट 2 आर वुमेन. फर्स्ट लड़का है, सेकंड थर्ड लड़की है. और 3 साल हैट्रिक रही. पहले एक लड़की आई इरा सहगल फ्रॉम हरियाणा, दिल्ली. फिर उसके बाद आई टीना डाबी जो हमारी थी.
हरियाणा से, फिर उसके बाद एक हमारी वही पार्वती उसका बेंगलोर से, तो चौथी बार फिर तेलंगाना का लड़का आया। मैं कहा तूने तो जिंक्स तोड़ दिया एक्टिंग में, तो ये तो बन गया था सिलसिला। तो ये डेमोग्राफी इसलिए बदली है कि ये हमारे अगर 100 में से 10 बच्चे ऐसे होते हैं हु आर एबल टू डिस्कवर दी एवेन्यूज अवेल करने के, हाँ हमारे पास ये है और वो कर रहे हैं। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज ये है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्चना, आपको बड़े एलीट स्कूल में जाने की जरूरत नहीं। ये जो बेती 3 साल पहले एक बेती लड़का था सरदार जी, अमृतसर से सेकंड आया, तो उसने इंडियन फॉरेन सर्विस ऑप्ट किया था। तो मैंने सब बातों में निकल गया, मैंने कहा बेटे आजकल तो ट्रेंड IAS का है, क्योंकि जैसे इंजीनियरिंग में होता है ना, कभी मैकेनिकल कभी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ट्रेंड बदलता रहता है। तो तू सेकंड टॉपर हो, तूने आके तो चुप रहा। बाद में 3 दिन के बाद उसके पिताजी आए अमृतसर से स्पेशली, वो कह लीजिए ऐसे ऐसे आपने बेटे को कहना, वो सोच में पड़ गया। मैं क्यों कहते हैं ठीक है सर जो है वो बड़ी गहराई से बात सोच के करते हैं, तो क्या है मेरे से गलती होगी। मैं कहने नहीं गलती नहीं होगी, मेरे से यकायक निकल गया कि आउट ऑफ ट्रेंड इसने कैसे फॉरेन सर्विस भर दिया। एंड यू नो व्हाट ही टोल्ड मी, दैट इज एन आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ अस, एंड दैट इज ऑल्सो mindset का difference. How a boy who has his own capacity can, lead himself further regardless of the others around him. तो कह लगे साहब असली बात यह है कि हमारे यहाँ सारी फैमिली ट्रांसपोर्टर्स की, हमें तो मालूम नहीं ये क्या होता है सिविल सर्विसेज इत्यादि, ना ही हमें ये पता कि बेटा क्या करता था कंप्यूटर के सामने बैठ करके। तो कह लगे मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ कनाडा बहुत कहा जाता है, शायद उसी सोच में सिर्फ फॉरेन सर्विस भर दिया हो। Now you see, there is a story inside that. The success stories emanating from those. ये जो मैंने तेलुगु बच्चे की बात की, तो मैंने उसको बोला कि तू तेरे नजदीक तेलुगु मीडियम का कॉलेज था, तो उसके आगे भी तो कोई हुआ? तो कहता हाँ था, बट मैंने एक प्लान किया था अपने लिए कि पैसे ना होने की वजह से, कम होने की वजह से मैं पैदल जाऊंगा। ऐसे कॉलेज होगा जहाँ मैं पैदल भी जाऊँ, जो मुझे डिग्री भी दे दे, बिकॉज माई मदर इज अ हाउस मेड, घरों में काम करती है। तो देखिए कैसे हमने अपने आप को प्लान करना है। हम अपने आप अपनी प्लानिंग छोड़ देते हैं आधी पेरेंट्स के ऊपर, आधी छोड़ देते हैं लीडरान के ऊपर, नेताओं के ऊपर। सुबह पहुंच गए MLA के दरवाजे पे, MP के दरवाजे पे, और सारा वक्त हमारा उसी में निकल जाता है। सो आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी अवेलिंग, एंड यस IAS का रिक्वायरमेंट भी बदल गई। पहले IAS देखो, पहले उसको बोलते थे कलेक्टर अंग्रेजों के वक्त में, क्योंकि यू हैव टू कलेक्ट रेवेन्यू फॉर द एम्पायर। आज इसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन, यू हैव टू कलेक्ट रेवेन्यू फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट। तो उसका सारा स्पेक्ट्रम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और दिन ब दिन बदल रहा है। सो आई एग्री विद यू, एवरीवेयर दिस इज अ डायनेमिक ट्रांजिशन विच हैज टू टेक प्लेस। लेकिन इस ट्रांजिशन का हम फायदा कैसे उठाएं, दैट इज द चैलेंज फॉर द यूथ। एंड सिंस 100 years is going to be a landmark year, so youth at 100 will have a unique distinction. Thank you. सम्मानित मंच पे उपस्थित माननीय डॉक्टर साहब को मेरा प्रणाम। सर मैं अनूप सिंह, जम्मू विश्वविद्यालय लॉ डिपार्टमेंट का छात्र हूँ। सर एक आपने बहुत इंस्पिरेशनल लाइन कही कि हमें 2021 में जॉब लेने वाला नहीं, जॉब देने वाला होना चाहिए। तो सर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, क्या इसमें भविष्य में ये हमारे लिए लाभदायक होगी कि हम जॉब लेने वाले नहीं, लोग जॉब देने वाले? नहीं, आप ठीक है, जॉब मैंने ये भी नहीं कहा जॉब देने वाले, पहले अपने लिए हम करें ना, फिर ऑटोमेटिकली हो जाता है। हमें देखिए, हमने ये हमारे लीडरों ने किया है, डोंट बिकम जॉब सीकर, बिकम जॉब गिवर। वो बच्चे को समझ नहीं आता क्या कह रहा है ये। नेता को भाषण अच्छा लगता है, अखबार वाले छाप भी देते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता, इट हैपन्स स्पॉन्टेनियसली। आई टेल यू हाउ, इफ यू आर अ गुड जॉब, if you are good at finding livelihood for yourself, automatically आप जॉब गिवर बन जाएंगे, आपको बनाना नहीं पड़ेगा। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हमारे एक युवती है, यंग लेडी, का नाम शोभा की, क्या शिरडी में रहती है, शिरडी जो आपका शिरडी बाबा वाला शिरडी, पुणे के पास। अब देखिए, ये मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ कि आप पहले अध्ययन करिए। हम खुद ही नहीं अध्ययन कर रहे ना, बाकी लोग कर रहे हैं। उसको कहीं से पता चला कि हमारी जो CSIR की लैब है लखनऊ में, उसमें एक टेक्नोलॉजी, वो कहीं से वो करते करते उसने वो
वहाँ पहुँच गई और ले लिया। तो उसने क्या किया, जो वेस्ट है वो क्या करती है, जो दो काम करती है, एक तो वहाँ मंदिर पे जितने फूल चढ़ जाते हैं शिल्पी के वो इकट्ठे कर देती है, वो रात को फेंक दिए जाते हैं, कोई पैसा नहीं लगता उसमें, बस थोड़ी लगता है। पुजारी ने क्या करना, फूल जो पास से पड़ गए, कहते हैं जी परमात्मा के चरणों में मुरझाए हुए फूल वैसे भी नहीं रखने, तो वहाँ इतनी चढ़ा तो सारे फेंके, वो सब जाके शाम को कलेक्ट करें। और उससे उसने अगरबत्ती का रोल बनाना शुरू किया, और साथ में एक तुलसी का तिल बीज एट द एंड ऑफ दिस, सॉरी पेंसिल बनाना शुरू किया, उसके अंदर तुलसी का बीज। तो जब पेंसिल खत्म हो जाए तो बीज लगा दो बोने के लिए। एंड ग्रेजुअली वो शी स्टार्टेड मेकिंग गुड मनी, क्योंकि ये देखिए जो आपकी इनोवेशन है, जो स्टार्टअप है, ये तब कामयाब होगा जब आपके इसके साथ लाइवलीहुड स्टेज होगा। जब आपको लगा कि ये 2 बाइटेक बच्चों का मैंने उदाहरण क्यों दिया, इन्होंने नौकरी इसलिए छोड़ी कि इनको लगा रहे यार ये अनपढ़ लड़का हमसे ज़्यादा पैसे कमा रहा है। अब देखिए इस महिला ने जो किया, इसकी इन्वेस्टमेंट तो कुछ नहीं कर थी, सिर्फ वहाँ से फेंके हुए फूल आती थी और प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो गया। 6 महीने के अंदर इसके पास आज 15-20 और लेडीज का ग्रुप बन गया, और खुद ही आके जोड़ गई कि बहन ये तो बहुत अच्छी बात है, हम भी करते हैं, तो चलो ठीक है भाई तुम भी उठाओ, मैं 2 किलो उठाती हूँ, तुम भी 4 किलो उठाओ, और वो खुद ही एक ग्रुप बन गया। सो ऑटोमेटिकली दिस जनरेट्स एन इकोसिस्टम। अगर हम कुछ करते हैं तो दूसरे लोगों को भी लगेगा कि साहब ये कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर रहे। सो यू ऑटोमेटिकली बिकम जॉब गिवर, नॉट कॉन्शियसली। जब हम ये बड़ी बात भारी तरीके से कहते हैं बिकम जॉब गिवर, तो लगता है पता नहीं मैं फैक्ट्री लगाऊं और वहां 4 आदमी को नौकरी दूं, वो करने की जरूरत नहीं है। अपना एक स्टार्टअप करिए, उस स्टार्टअप के साथ लोग वैसे ही जुड़ जाएंगे व्हेन दे फाइंड दैट यू आर सक्सेसफुल। आप देखिए हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हर साल 5,000 से 6,000 करोड़ सिर्फ अगरबत्ती का बिजनेस है, और इतना ल्यूक्रेटिव काम है। अगरबत्ती हर जगह चलती है, मंदिर में, श्राइन में, पूजा में, कहीं नहीं तो खुशबू के लिए। और ये सारी की सारी अगरबत्ती बाहर से आती थी, अमेरिका सॉरी कोरिया और चीन से। और बनती कहाँ से? बैम्बू से। वो हमारा बैम्बू ले जाते हैं और हमें अगरबत्ती देके देते हैं। अब हमने उसमें 2 काम किए, एक तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को अमेंड कर दिया, एंड दिस ऑल बिकॉज मोदी जी अलाउज अस टू टेक डिसीजंस व्हिच आर समटाइम्स पाथ ब्रेक इफ ही इज कन्विंस्ड। तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट से उसको निकाल दिया, पहले उसकी इजाजत लेनी पड़ती थी बैम्बू तोड़ने की। दूसरा उसकी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई। हमें मालूम ही नहीं है हमारे बगल में कठुआ में बैम्बू है, रियासी में बैम्बू है। एक लड़के ने अब हिम्मत करके समवे में थोड़ी लगाई है, कॉस्ट इफेक्टिव है वो काम, उसने रेस्टोरेंट बनाई। हम कुछ नहीं करेंगे, 4 लोग मिलके ही, और वो कैसे करना आप हमें बताइए। हमने हमारा एक शिलांग गुवाहाटी शिलांग रोड पे एक सेंटर है, केन एंड बैम्बू टेक्नोलॉजी सेंटर, वो सारा कुछ बता देता है। लोग जाते भी हैं, सीखते भी हैं। मैं हैरान हूँ, गुजरात से लोग आते हैं सीखने, क्योंकि ये एंटरप्रेन्योर, वी हैव टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ एप्टीट्यूड। हमने एक छोटा सा प्रयोग किया था आज से 5-6 साल पहले स्टार्टअप्स के लिए। मैंने कहा वायबिलिटी फंड हम देंगे, अगर किसी का पैसा लगता है तो माँ बाप ना दे, हम देंगे। तो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया से जोड़ दिया, और अगर 3 महीने में उसको लगता है, उसका मन नहीं लगता, तो बदल भी दे पेशा में, कोई दिक्कत नहीं। सोचा था मैंने इसलिए कि नॉर्थ ईस्ट के लिए तब शुरू किया था। नॉर्थ ईस्ट से बहुत से बच्चे बाहर जाते थे, वहाँ भी सरकारी नौकरी का ही कीड़ा चलता था, बिकॉज माइंड सेट ही ऐसा था। दैट वाज द कॉलोनियल स्टेट एज वेल, पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। देखते ही देखते अपने लोगों के बजाय गुजरात से आने ग्रुप शुरू हुए, क्योंकि कुछ ऐसे प्रदेश हैं हमारे यहाँ भारत में जहाँ सरकारी नौकरी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब गुजरात में आप किसी बच्चे को कह दो तो सरकारी नौकरी करे, वो सोचते हैं शायद मेरी तौहीन है, मुझे इन्होंने नाकाबिल समझो। तो एक हमारे अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप की ड्राइव थोड़ी सी आ जाए, इनोवेशन की, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये एवेन्यूज आ जाए। Afternoon, sir. You were talking about the interaction and the integration of the different institutes here for the research development.
but maybe it can be officially implemented. But when you go there or in different institutes, they did not treat you as their own students. There is always a difference between their own students and the students from different institutes. So there must be some way so that we can easily assess the different opportunities in different institutes, so that we can easily work there. When you go into different institutes, they did not give you that much of area to explore or that much of help for their research. So how can it be possible that we can access? You were saying that in IIIM there is more research and in Jammu University there is less research. But when we want to avail the opportunity from IIIM, they did not help in that way always. नहीं, आई एग्री विद यू. तभी मैंने कहा कि माइंडसेट चेंज करना इज नॉट ओनली मेंट फॉर यूथ, दो दे हैव ग्रेटर स्टेक, दे आर ग्रेटर. उसके लिए वैसे जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन एक पहल की थी हमने प्रोफेसर साहब को सजेस्ट किया, दे हैव एंटर्ड इनटू एन MOU विद IIIM नाउ. एंड मैंने कहा कि जितनी जम्मू, बिकॉज जम्मू हैज बिकम एन एजुकेशन है, ऑल ऑफ देम हैव टू इंटीग्रेट. तो वी डिड एन MOU IIM, Jammu University, IIT and also this AIIMS. क्योंकि आपको कल सिर्फ IIM तक नहीं जाना होगा, आने वाले समय में IIT के अंदर मेडिकल कॉलेज खुलेगा. 2 प्रपोजल आ गए हमारे पास. IIT कानपुर को ज़्यादा प्रोग्रेसिव और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, क्योंकि सारी मेडिसिन भी टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गई. अब डॉक्टर नर्स तो देखता ही नहीं है, पेशेंट भी नहीं देखता. हमने वो डॉक्टर ऑन व्हील्स का टेलीमेडिसिन का कैंप शुरू किया डोगरा के रिमोट एरियाज में जहाँ कभी कोई डॉक्टर नहीं गया. वहाँ से 2-4 बच्चे हैं, देर ऑल इन देयर 20s, दे आर फ्रॉम आंध्रा विच इज़ अगेन अ वेरी प्रोग्रेसिव स्टेट. तो उनको हमने कहा कि आप वहाँ करो, हर जिले में, हर गाँव में लगा लें. ऐसे लगा के टेम्परेचर देखना, ऐसे लगा के ECG, ऐसे, और 20 मिनट में सारी इन्वेस्टिगेशन पहुंच जाती है मेट्रो हॉस्पिटल में और डॉक्टर देख के करता है. तो ये सारी टेक्नोलॉजी है. तो IAS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वाले कह रहे हैं क्यों ना हम इसी में करें इन हाउस. तो इंटेग्रेशन इज नॉट ओनली नाउ टू दी सिंपल आंसर टू योर क्वेश्चन इज आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये मजबूरी बन जाएगी सबके लिए. बिकॉज इंटेग्रेशन इज नो लॉन्गर एन ऑप्शन, इट इज नाउ अ कंपल्शन. If any institution has to grow, it has no other way. अब किसी मेडिकल कॉलेज में ग्रो करना तो उसको टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग का सहारा लेना पड़ेगा. एंड देयरफॉर खैर इन्होंने अब MOU किया, लेकिन धीरे धीरे वो कंडीशनिंग ऑफ माइंड भी हो जाएगी जब उनको लगेगा कि हाउ दे आर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर. बट आई थिंक एट द आउटसेट इन रिस्पॉन्स टू हर क्वेश्चन, वाइस चांसलर साहब डॉक्टर रेड्डी को किसी दिन बुला लें यहाँ, एंड बच्चे भी इंटरेक्ट करें, एंड यू फाइंड अ रेगुलर way she is interested in availing of. There is a huge facility actually in IIIM. नहीं, certainly नहीं, वो ऐसा है कि अब तो ऑनलाइन सारा कुछ हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं. बट विद इन इंडिया तो करो. अभी मैं उस दिन गया था, बिकॉज आई डू इट आउट ऑफ पैशन. अब मुझे कई बार फिर परेशानी होती है कि मैं ज़्यादा चला तो दूसरे कम चले. I went to Scotland and I told them, वहाँ पर एक गर्ल लाइक हर थिंग, कह रही साहब मैं ऐसे कर रही हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, आगे क्या करूँ. She was trying to look for answer. मैंने उसको बताया कि हमारे यहाँ JNU कैंपस में एक है इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जेनोमिक्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ NIPGM, बिकॉज ये भी उसी लाइन में. वहाँ डॉक्टर सुब्रा चक्रवर्ती है डायरेक्टर, वेरी डेडिकेटेड पर्सन फ्रॉम बंगाल. उनके पास वो फैसिलिटी है सारी दुनिया में नहीं है. दे आर सम ऑफ द यूनिक. तो मैंने वो फिर डॉक्टर शर्मा को कहा, मैं इसको भेजो 15 दिन के लिए, वहाँ अरेंज करवा देंगे. तो बेटे जो आप कह रहे हो वो एक कंपल्शन है, अगर आप नहीं करोगे तो आपका सफर रुक जाएगा. एंड द टीचर्स ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट. तभी मैं कह रहा हूँ द मेंटर हैज टू फर्स्ट मेंटर हिमसेल्फ एंड देन मेंटर द चाइल्ड. चलिए वो एक तो बोल रहे तो आप टाइम है नहीं गाना तो 5 मिनट कर लेते हैं. नमस्ते सर, मेरा क्वेश्चन है जैसे कि इन्होंने पूछा, आपने हाल ही के दिनों में इनिशिएटिव लिया था रिमोट एरिया लाइक डोडा, बलेसा, गंदोह में जो डॉक्टर्स ऑन व्हील्स.
तो सर हम आने वाले सालों में किस तरह से इसे सारे जम्मू कश्मीर और कब तक देख सकते हैं? नहीं, बहुत बढ़िया आपने पूछा। अब इसकी भी जानकारी आनी होगी। क्या प्रॉब्लम क्या है हमारे यहाँ? किसी चैनल ने इसको रिपोर्ट नहीं किया, किसी मीडिया ने नहीं इसको रिपोर्ट किया। ये जो पर्पल रेवोल्यूशन की बात अभी कर रहे थे, एक फ्रेंच चैनल ने आके इसको कवर किया, भद्रवाह को, लेकिन हमारे जम्मू का चैनल यही पूछता रहता है कैसे डोगरों की तरक्की हो। तो ये भी तो डोगरे ही हैं बेचारे, उन्हीं की तरक्की के लिए हो रहा है। इसी तरह से हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो रियासी में बन रहा है, तो अगले साल चालू हो जाएगा। मैंने 6 साल पहले कहना शुरू किया कि हाईएस्ट, क्योंकि वो पुल रुक गया था, तो मेरी कॉन्सिक्वेंसी सुरेश प्रभु जी को मैं वहां लेकर गया शुरू में। बार बार हम मीडिया से भी कहते थे भाई इसको हाईलाइट करो, कि उसी को दिलचस्पी थी। एक दिन अचानक मेरे पास एक महिला आई है, फ्रेंच लेडी, who was the bureau head of a France newspaper in Delhi। तो हमें आदत है ऐसे जुमले कसने। तो मैं कहा, मैम, यू आर प्राउड ऑफ हैविंग द हाईएस्ट मॉन्यूमेंट इन योर कंट्री? कहती, यस ऑफ कोर्स, एफिल टावर। मैं कहा, वी आर कमिंग अप विद अ मॉन्यूमेंट विच इज 35 मीटर हायर देन दैट। पूछो कि कौन सा है? मैं कहा, ये पुल। विदिन 3 days शी केम, मेड अ डॉक्यूमेंट्री फ्रेंच में। फिर हमारा मीडिया बोला। और ये जो डॉक्टर और वीर ये कह रहे हैं, ये आने वाले टाइम में यही एक चैनल होगा। हमें ये आइडिया आया कि जम्मू कश्मीर में शुरू करना है, तो डोडा एक रिमोट एरिया है, 50-60 जिलों में एक एक करके जाया जाए। एंड आई विश कभी वो वापस आए तो यहाँ भी उनकी डेमोन्स्ट्रेशन दी जाए। एक्चुअली आई एग्री विद व्हाट शी वाज सेइंग, द यंग लेडी। हमने इंटेग्रेट सिर्फ दूसरी इंस्टीट्यूशंस के साथ नहीं करना, उनके अलावा भी करना है। सीखने को तो तभी मिलेगा ना। दैट्स अ ग्रुप ऑफ 3-4 बॉयज, एक गुजराती लड़का, एक कर्नाटक की लड़की है, एक वहां की है हैदराबाद। 20 मिनट के अंदर अंदर ऐसे ऐसे गांव में वो जा रहे हैं जहां कभी किसी ने डॉक्टर देखा ही नहीं। भलेसा के अंदर, तो आजाद साहब के गांव से शुरू किया था। 20 मिनट के अंदर पूरा बॉडी का प्रोफाइल वो दे देते हैं, जो आपको मेट्रो अस्पताल में 20-25 हज़ार लगेगी। ये तो चूंकि हमने कैंप स्पॉन्सर कराया तो ये फ्री चल रहा है, लेकिन आगे तो खैर इसका कमर्शियल टिल्ली भी, ये भी एक आपके लिए स्टार्टअप बन सकता है कल को, पैसे कमाने का भी। तो वो तो मैंने चूंकि किसी से लगाया, कुछ उसमें फंडिंग क्या कुछ खुद की, तो मैंने कहा ये हाँ तो बेचारे दे ही नहीं पाएंगे। लगभग 25,000 के टेस्ट, ब्लड, यूरिन, ऑल प्रोफाइल्स, थायराइड, ECG, सब कुछ, अल्ट्रासाउंड। और इन नेक्स्ट 15 मिनट्स यू गेट कनेक्टेड विद द कंसर्न डॉक्टर। उसमें 4-5 अस्पताल रखती है, एक अहमदाबाद में है, एक सूरत में है, एक बेंगलुरु में, एक हैदराबाद में, तो जहाँ कंसर्न डॉक्टर्स थे। और लगभग 45 से 50 मिनट में पेशेंट फारग हो जाता है। अब वो मेट्रो में जाएगा तो 20, मेट्रो अस्पताल में किसी में जाएगा कॉर्पोरेट में तो 25,000 उसके टेस्ट के लग जाएंगे। फिर अपॉइंटमेंट लेगा डॉक्टर की तो 1 हफ्ता और लग जाएगा। अपॉइंटमेंट भी वो 5-7 हज़ार फीस लग जाएगी। वो तो खैर हमने एक फ्री किया है एक्सपेरिमेंट, डोडा में वो कभी हो गया, हम उसको दूसरे जिले में ले जाएंगे, कठुआ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये इसलिए फैसिलिटी है, ये हमारे पास है, ये भी तो एक स्टार्टअप है। वेयर वी नॉट एंगेजिंग। और जो आप कह रही हो कि बाहर वालों के साथ, तो बाहर वालों के साथ हम इससे लिंक हो सकते हैं। कोविड ने हमें बहुत अच्छी बातें सिखाई। एक हमने मेडिकल की कॉन्फ्रेंस की डॉक्टर साहब ड्यूरिंग हाइट ऑफ कोविड, वी हैड पार्टिसिपेशन ऑफ 21 कंट्रीज एंड 3 कॉन्टिनेंट्स। तो हमारा जो ऑर्गेनाइजर था नौजवान, मैंने कहा यार तो तुम तो बिना चाय का प्याला दिए हुए खत्म हो गए, क्योंकि आई हैव बीन ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंस। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस करने के लिए दिल्ली में सारे बड़े होटल पहले बुक करने पड़ेंगे फैकल्टी के लिए। और फिर लास्ट मिनट प्रॉब्लम्स, किसी की फ्लाइट मिस हो गई, किसी की आगे हुई, किसी को कुछ। इसमें कुछ नहीं किया, कैमरा लेके सबको जोड़े और 100% अटेंडेंस भी हो गई और चाय का एक प्याला भी नहीं खर्चा। तो ये हमारे पास ऑलरेडी है चीजें। इट्स ओनली दैट वी नीड टू लर्न एंड एक्सप्लोर दैट to our advantage and to our requirement. And Doctor on Wheels is basically, I think, also one of the best samples of what Prime Minister Modi announced from the Red Fort Digital Health Mission. तो मुझे अच्छा लगा कि आपने ये सवाल पूछा। तो डिजिटल हेल्थ मिशन का जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, उसका सबसे पहला और सबसे बढ़िया नमूना अगर कहीं पेश किया गया तो जम्मू कश्मीर के डोडा जिला।
आपकी जो प्रश्न है जिनके रह चुके हैं, क्योंकि सर को अभी जाना भी है और बहुत सारे प्रश्नों का ये उत्तर चलिए दो ये और वो पूछ रही है दो बेटी। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। नमस्ते, वंदे मातरम। मेरा नाम रमनीक शर्मा है, संस्कृत विभाग का छात्र हूँ। सर मेरा क्वेश्चन है कि अपने जम्मू विभाग में बहुत से ऐसे पर्यटक स्थल हैं जो अभी तक डेवलप नहीं हुआ है कंप्लीट तरीके से, अगर और बहुत ही सुंदर, आपको जानकारी होगी इसकी, बहुत ही सुंदर है सर। अगर सरकार की तरफ से उसकी क्या योजना है, अगर वो डेवलप हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। एवं एक सुझाव है छोटा सा, रिसर्च स्कॉलर्स जम्मू यूनिवर्सिटी के हैं यहाँ बैठे हुए सर, ऐसा कोई ऐसा प्लान हो जिससे इंटरेक्ट कर सके स्कॉलर बाहर की यूनिवर्सिटी से, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, JNU यूनिवर्सिटी है, तो एक काफ़ी अच्छा हमें एक एक्सपोजर मिलेगा सर। नहीं ठीक है, जो आपका दूसरा प्रश्न, इंटरेक्शन तो होना ही चाहिए। मैंने कहा अब इंटरेक्शन इज नो लॉन्गर एन ऑप्शन और ए लग्जरी कि जब होगा तो जाएंगे, अब ये कंपल्शन है। जैसे मैंने आपसे अभी बता रहा था, जब मैं कॉस्ट में गया तो एक बच्ची आई, कहने लगी है नहीं, तो मैंने कहा, मैंने वाइस चांसलर साहब से कहा, मैं 15 दिन के लिए भेजो इसको, हो जाएगा। जो बच्चा अपने आप को डिस्कवर करता है उसको फिर ये नहीं समझ आता कि कहाँ जाए, क्योंकि हमारे टीचर्स की, फैकल्टी की जो आपकी गाइड है उनकी अभी उस तरह की ओरिएंटेशन नहीं हुई, तो ये साइमल्टेनियसली होना जरूरी है। और आज तो मुश्किल नहीं है। मैंने आज बायोटेक्नोलॉजी ब्लॉक का जब हम उद्घाटन कर रहे थे तो पहला सवाल मैंने प्रोफेसर साहब से यही पूछा कि वेबरूम कहाँ है, कहने के बनाएंगे, मगर जरूर बनाइए, आज ही बनाइए। और जैसे क्या काम वहाँ हो रहा है आपको पता चलेगा। अगर उसने जीनोम सीक्वेंसिंग कर दी 1 लाख लोगों की, तो हम क्यों नहीं कर पाते? टेक्नोलॉजी तो वही है, बट वी हैव टू। दूसरा जो आपका टूरिज्म का है उसमें थोड़ी पॉलिटिकल कनोटेशन में उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि पिछले 5-4 साल में इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक तो हमने मानतलाई, जो कांग्रेस वाले छोड़ के गए थे पिछले 35 साल से, नरेंद्र ब्रह्मचारी की विरासत थी, उसको 100 करोड़ से डेवलप कर रहे हैं। स्टेट ऑफ आर्ट एक वेलनेस सेंटर बन रहा है, जल्दी तैयार हो जाए, देखने लायक है, कभी आप जाओ। और हेलीपैड वगैरह। दूसरा मानसर का, वहाँ बोटिंग तो राफ्टिंग शुरू होगी, बाकी भी सेफ्टी होगी, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी होगी, वाटर स्पोर्ट्स भी होगी, रिलीजियस टूरिज्म भी होगा। और ये आपके लिए स्टार्टअप्स को जोड़ना। ये टूरिज्म सेक्टर सिर्फ टूरिज्म नहीं है, ये भी हमने समझना है, ये आपके लिए घर बैठे बैठे कमाई का जरिया है। मैं जब मेघालय गया पहली बार 7-8 साल पहले, तो मैंने कहा ये शिलांग तो इतनी खूबसूरत जगह है, एंड इट इज दी ओरिजिनल कैपिटल ऑफ ब्रिटिश असम। तो यहाँ पर लोग आते हैं और भाग जाते हैं, और इतना वो नहीं है, तो बोले साहब यहाँ क्योंकि होटल किसी ने नहीं हो रहा है, अब तो खैर वहाँ बनने लगे हैं 1-2। तो मैंने कहा उसकी ज़रूरत क्या है, तो हमने कुछ बच्चे तैयार किए। मैंने कहा होम टूरिज्म, होम स्टे, वही होम टूरिज्म का आप शुरू करो। तब बाकी जगह नहीं था, यहाँ से 7-8 साल पहले, और कुछ 3-4 लड़कों ने शुरू कर दिया। मैं 1 महीने के बाद पूछने आया, जैसे आप, मैंने स्पेशली उसके घर गया, उनके यार नीचे आ, कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया। मुझे क्या कहता है, एक अंग्रेज ऊपर ठहराया हुआ, सुबह 2 अंडे दे, रात को मछली और जिसकी वो अपनी लेके आया, और 10,000 रुपये रोज के दे देता है। देखो यही इनोवेशन है। इनोवेशन का मतलब ये नहीं है कि लेबोरेटरी में जाकर के बीकर में सोल्यूशन खोजनी है। इनोवेशन इज कॉन्स्टेंट एक्सरसाइज ऑफ द माइंड। मैंने सिर्फ उसको बताया, उसने आगे उसको खुद इनोवेट कर दिया, उसने उस अंग्रेज को ऐसा, और उससे ट्रेंड बन गया। अब वो जो अंग्रेज वहां वापिस जाएगा, वो कहेगा फलाना एड्रेस है भाई, वो लड़का बहुत बढ़िया, अंडा भी बहुत बढ़िया देता है, मच्छी भी बहुत बढ़िया। तो ये जब टूरिज्म आएगा, इनफैक्ट अब क्या हुआ कि फिर मैंने बहुत से चेन्स को कहना शुरू किया कि आप होटल बनाओ शिलांग, ताज वाले खोल रहे हैं। दूसरा, मुझे कॉर्नर सांगमा जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, वो पिछले दिनों मुझे कहते डॉक्टर साहब बड़ी जरूरी बात कहते हैं, वो आपके जो वहाँ बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि सर को बोलो वो और होटल ना खुलवाए। मैंने कहा भाई ये तो तरक्की होती है। कहते नहीं सर, वो कहते हैं हमारा बड़ा अच्छा काम चल रहा है। तो ये अच्छा, फिर क्या है कि डायनेमिक्स ऑफ दी स्टार्टअप ऑल्सो विल कीप चेंजिंग। कल को ये हो गया तो कुछ और करना। अब ये नहीं है कि अब वो कहेगी जी कटरा में ट्रेन आ गई तो हमारा काम कैसे होगा, जम्मू का कैसे, नए एवेन्यूज आते जाते हैं, हम अपने आप को अपडेट भी करते रहे। तो टूरिज्म की भी डेवलपमेंट करने, क्योंकि पहले इस रीजन को पूरी तवज्जो नहीं मिली, अब तो ऐसा नहीं है। लेकिन उसमें से मुझे ज़्यादा इस बात का कंसर्न है कि स्टार्टअप्स के लिए अपॉर्चुनिटी मिले यंगस्टर्स को, ताकि आपका नौकरी से रुख ही खत्म हो जाए, कोई देखेगा ही नहीं अप्लाई करने के।
हाँ बेटे, तो फिर हम चलेंगे। Good afternoon, sir. So my name is Anju and I am a PhD research scholar from Department of Sociology, University of Jammu. So since we are discussing how to become self-dependent, so my question is, what kind of steps we are going to take for making special children self-reliant, like the children who have certain kind of disorders, for example, chromosomal disorders. Sir, as far as our UT is concerned, there is lack of such special centers where such children can become self-dependent or they can get training from them. So my question is this, how we are going to deal with such kind of children? नहीं, वो ठीक है बेटे, वो जो आपने पूछा वो उसी से लिंक होता है, इंटेग्रेशन। तभी मैंने कहा ना डॉक्टर साहब को वेब रूम का। अभी हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी के ही एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूट्स लगभग 16 हैं देश में, और जो आप कह रही हो क्रोमोसोम स्टडीज भी हो रहा है, सीक्वेंसिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, और कोई मुश्किल नहीं है यहाँ करना। सिर्फ क्या है कि हम अपने ही रिसोर्सेज के बीच में फंसे हुए, तो उसकी व्यवस्था की जा सकती है। आज वैसा साहब से बात भी हो रही थी, वो हो जाएगा। आई थिंक इन्होंने मुझे बताया भी कि दे आर गोइंग टू इनिशिएट। Yes sir. Sir, my question... और उसमें दोनों चीजें करनी है। मैंने कल इनको बता रहा था, एक इंस्टीट्यूट वाले को, शायद वो हैदराबाद में जो हमारा इंस्टीट्यूट है, जो हमारा भी, इसमें भी आपको आपका टीचर भी वही सिखाएगा और आपको भी। क्रोमोसोम स्टडी जो आप कह रहे हैं, उसमें सिर्फ डिजीज ट्रीटमेंट के लिए नहीं है, वो उसके बियॉन्ड है। आप डिजीज प्रिवेंशन के लिए आप करें, यानी अगर इस फैमिली में कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर चल रहा है तो उसके पेरेंट्स को करना। अच्छा, मुझे किसी ने बताया हैदराबाद वाले ने कि पेरेंट्स का करना हमने शुरू किया है। मैंने कहा पेरेंट्स का करने से बजाय क्या ऐसा हो सकता है कि प्री मैरिटल किया जाए, शादी से पहले, इंस्टेड ऑफ मैचिंग दी हॉरोस्कोप यू मैच दी क्रोमोसोम्स। शायद हम तो नहीं रहेंगे, लेकिन 2 जनरेशन बाद ऐसा कल्चर आएगा जब किसी ने, अब साउथ इंडिया में कंसेंटिविटी बहुत होती है, मामा के साथ शादी, वो भी कम हो जाएगी इससे, बिकॉज दैट लीड्स टू नंबर ऑफ सच डिसऑर्डर्स, congenital heart disease, etc. तो अगर if you could do it pre-maritally among the prospective spouses, you could actually, break that cycle of genetic inheritance. इसमें बहुत काम है, this is upcoming area. Yes sir. Sir, but जो बच्चे अभी हैं, the children who have that chromosomal disorders right now, what kind of steps our government is going to take for those children, like how they can achieve certain kind of achievements, certain kind of progress they can make in their life. Like in our, as I heard from Riyasi district, there is no such center available for those children. नहीं, you mean training of the physical children? Yeah, yes sir. तो वो अगर नहीं है तो करना चाहिए, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। इनफैक्ट एज फार द गवर्नमेंट लेवल इज कंसर्न, मैंने तो इतनी रिफॉर्म्स ला दी है रेवोल्यूशनरी, वो कोई पढ़ता नहीं है, और हम बोलते हैं तो कोई सुनता भी नहीं है। फिर हम कहते हैं शेर कहें और दिल बहलाए। दिव्यांग के लिए फैमिली पेंशन मैंने अलाउ कर दी कि अगर पेरेंट मर जाए तो सीधा सीधा उसको पूरी कर। बेटियों के लिए आपको मालूम है, अगर किसी बेटी का डिवोर्स हो जाता था और वो पेरेंट्स के पास वापस आ जाती थी एंड बिकम्स डिपेंडेंट, है, उसको फादर की डेथ हो गई तो उसको पेंशन नहीं मिलती थी, फैमिली पेंशन। वो तभी मिलती थी अगर वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करे कोर्ट से कि मेरा डिवोर्स हुआ है। मैंने कहा भैया तो डिवोर्स के केस 15-15, 20-20 साल चलते हैं, अगर एक पार्टी ना माने तो ये कहाँ से लाएगी? तो हमने बदल ही दिया। मैंने कहा सिर्फ उसकी जरूरत ही नहीं। मुझे किसी ने कहा कि साहब ऐसे ऐसे भी कई लोग हैं चतुर कि बेटा डिवोर्स किए हुए फर्जी कह देंगे, तो क्या करना? तो मैंने कहा हम ऐसा करेंगे, कोर्ट में जाकर के वो अपनी अर्जी दे दे, याचिका, और उसका प्रूफ लाए। वी विल नॉट वेट फॉर दिस। So this, I agree with you. This is all a part of the reform process, and which has been undertaken by Prime Minister Modi. और अगर ये सेक्टर नहीं है तो इसका किया जा सकता है। I don't think. In fact, we can also arrange for small teams to come here. अगर आप बता दें, वाइस चांसलर साहब से पूछूंगा किस किस्म का डिसऑर्डर है, स्पेसिफिकली केटरिंग टू दैट मैं करवा भी दूंगा। मैंने अपने MP डैड से एक आर्टिफिशियल लिम्ब लगवाई एक अपने कार्यकर्ता की, तो 8 लाख में वो लिम्ब लग गई। फिर उसके वो मैंने दिल्ली में एक फ्रेंच ग्रुप है वो ट्रेन करता है। नाउ वी क्लाइंब अप द हिल
तो आजकल मौजूद सब कुछ है, फील्ड होता है। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल बहुत शुक्रिया। और आप सबके प्रश्नों के उत्तर ये जो बेटी रात में कोई बोलना चाह रही है Good afternoon, sir. Sir, sorry, last question one. Sir, I'm Sufi Sharma from Biotechnology Department. Sir, as I am into this biotechnology subject, so I came to know about this subject at graduation level. So, the biotechnology is a life-saving subject, as we can see that for the last 2 years, for COVID, vaccine is being developed by biotechnologists. So, sir, is it not necessary that at school level, like other subjects like biology, botany, zoology, or chemistry, the young students they would able to learn about biotechnology? नहीं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा लाया जा रहा है, उसमें वोकेशनल एस्पेक्ट आएगा ना, तो उसमें आएगा जो, बिकॉज दिस हैज ग्रेट लिंकेज टू बायोटेक्नोलॉजी। आई एग्री विद यू। हमें यही नहीं पता कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है। अब आपको मैं जो बता रहा था ना, जिस इंस्टीट्यूट में, जैसे फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल, बिकॉज वी आर ऑल स्कॉलर्स फ्रॉम द साइंस फैकल्टी, जिस इंस्टीट्यूट में ये DNA वैक्सीन डेवलप हुआ है, नेशनल ट्रांसलेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट फरीदाबाद, उस इंस्टीट्यूट की ये हिस्ट्री है कि हिंदुस्तान का पहला इंडिजिनस सोलर सेल उसने 1977 में डेवलप किया था, जब लोगों को पता नहीं था सोलर एनर्जी क्या होती है, किसी ने सुना नहीं था। वो भी तो उन्होंने उस यू मस्ट अप्रिशिएट जो उस वक्त कोई इनोवेटर रहा होगा, रिसर्चर्स। तो मैंने उनसे कहा कि अगर 1977 के आर्काइव्स में से एक न्यूज़पेपर निकाले जाए तो देखा जाए कि कहीं इसकी खबर आई, तो बोले तो कहते हैं जी क्या निकलेगा, बड़ा मुश्किल काम। मैंने कहा आप निकालो, उसका रिजल्ट मैं पहले बता देता हूँ, ये बिल्कुल नहीं आई होगी और कौन सी आई होगी वो भी बता देता हूँ। साहब ये क्या है, मैंने कहा 1977 में सत्ता परिवर्तन हुआ था, इंदिरा जी की जगह पर राजीव देसाई आए थे, सारा साल वही खबरें चलती रही, सरकार रुकेगी, बिगड़ेगी, जाएगी, चरण सिंह आएंगे, ये खबर होगी, ये होगी। बिकॉज हमारे हर वी आर ग्रोइंग एज ए सोसाइटी, नॉट इन आइसोलेशन, सो द एंटायर सोसाइटी हैज टू इवॉल्व। वी आर ओनली 75 years old. 75 is a very small age in the age of a nation. 75 जैसे आदमी हो जाता है तो सोचता रहा वेटिंग रूम में बैठे हैं, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ तो अब अगर आप हिस्ट्री लिखोगे तो मुगल एरा, मौर्य एरा, ब्रिटिश एरा, तो 75 years does not even occupy the footnote of a chapter. So we are still evolving, even at the social level. हमें अभी पता ही नहीं, उसी तरह से हमारा जर्नलिज्म भी इवॉल्व होगा, हमारा मीडिया भी। आपको मालूम है, एक दिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैं कंपैरिजन कर रहा था, जितने हमारे बाहर के चैनल से कोविड के दौरान 8-10 महीने आपने क्या देखा चैनल पे, सिर्फ कोविड देखा ना, सुबह से रात तक, होगा नहीं होगा, इतना होगा उतना होगा, बच्चों को होगा, बूढ़ों को ये होगा, रात को डिबेट। बाहर की जितनी चैनल थी उसमें सिर्फ कोविड की न्यूज आ रही थी, हालांकि वहां पे भी था, बिकॉज दे हैव ड्रॉन दी बॉटम लाइन, इतना इवॉल्व हो गए। तो आई एग्री विद यू, लेकिन शास्त्रों में भी लिखा है कि 2 पीढ़ियां लगती हैं संस्कार बदलने में। जिसको मैंने कहा माइंडसेट बदलना, उसको शास्त्रों वाले संस्कार बदलना कहते हैं। बट वी हैव टू मेक अ कॉन्शियस एफर्ट फॉर दैट। थैंक यू। Yes, sir. Thank you, sir.